Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear teachers. I hope you all are fine. So here in this lesson today we are going to learn how we can design online test or online forms. So as you all know that it's very easy and simple method. So let's start without wasting any time. First of all, just have to log in with your Gmail ID, and then you can choose. You have to open a new tab and then type here Google Forms, and then choose here Google Forms Create. And now from these both options, personal or business, you just have to click on the personal Google form and then click on go to Google Forms. And then from here you just have to click on the blank form. Okay, now as you can see, this is the main interface of Google form, and then you have to start typing your form. So first of all, in the place of untitled form, I will erase it and I will type whatever I want. Like for example, if I will type Lahore Maktab School LMS, then in the place of form description you can type anything related to your subject, related to your topic. Like I will type here class 2 and I will type here computer. So as you can see, this is the place where you can add a new question. इस बटन से आप basically आप new question add कर सकते हैं. Like इस वक्त मेरे पास ये question है. So what I will do, I will click on this option of untitled question and I will type student name and I will click on this option of short answer, because the name of student will always be considered as short answer. So I will click on this option of required. That means कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये मैंडेटरी है, स्टूडेंट इसको लाजमी फिल करेगा. So I will turn this on. Now the next question I'm going to take is your I will type a question here. Question 1. I will type which of the following which of the following part is used to enter data into the computer. This is your question number 1. So now I'm going to give the options. So first option is my keyboard, next option is my projector, the next option is monitor, and the next option is my speaker. Okay, now you just have to choose the correct answer. So what as you can see, there is not any option of add answer. So what I will do, I will click on this option of setting and then here I will choose, click on this quizzes and I will turn this on, make this a quiz. So when I will turn this on, as you can see here multiple options, so you can choose any one of them. The first one is immediately after each submission. That means when the student will fill the form, he can automatically see his result. जब भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेगा उसके फ़ौरन बाद उसको रिजल्ट मिल जाएगा. और आप इसमें भी चेक कर सकते हैं लाइक लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसको स्टूडेंट को रिव्यू देंगे. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस immediately after each submission. एंड व्हाट विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ जर्नल ऑप्शन. इसमें क्या होगा, इसमें आपने क्लिक कर देना लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, के स्टूडेंट एक टाइम में एक ही दफ़ा क्लिक करेगा आपका जो भी आप क्वेश्चन है या जो भी आप फॉर्म प्रेजेंट करेंगे, और आपने इसे क्लिक कर देना है सेव पर. ओके, सेव करने के बाद इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी किस्म का कोई और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं. लाइक व्हाट आई विल डू, मैं अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ. अगेन आई विल ऐड वन मोर क्वेश्चन. ओके, अब मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन चूज़ कर रही हूँ वो मैं चूज़ कर रही इन द फॉर्म ऑफ चेक बॉक्स. ओके, मैं यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ. क्वेश्चन 2 है मेरे पास. सिलेक्ट
select the places where we can use computer. So I will write my answer here like schools, homes, and education. I will choose right here shopping malls or none of these. So again I will choose the answer. What I will do, I will click on this option of answer key. As I forget to add the answer of the previous one, what you have to do, click on this option of answer key. आपने इस पर क्लिक करना है और अपने जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करना है. लाइक आई विल चूज़ दिस कीबोर्ड और उसके बाद आपने 1 पॉइंट एंटर कर देना है और इसको डन कर देना है. और इसी तरह से आपने सेलेक्ट द प्लेसेस वेयर वी कैन यूज़ कंप्यूटर, इसमें भी क्या करना है, आंसर की पर क्लिक करना है जो आपका करेक्ट आंसर है. अब ये मेरे पास क्या है, एक चेक बॉक्स है. जो चेक बॉक्स में बेसिकली हम मल्टीपल क्वेश्चंस या मल्टीपल आंसर्स को हम ऐड करवा सकते हैं. लाइक मैं इसमें ऐड करवा देती हूँ स्कूल्स, होम, शॉपिंग मॉल्स एंड आई विल give 1 point and I will just press done. So in this way you can add multiple questions, multiple check boxes. So now as you can see, this is the option of add question. Now this is the option of import question. If you want to import your previous questions, अगर आपने पहले से ऑलरेडी काम किया और वहाँ से आप क्वेश्चन इम्पोर्ट करवाना चाह रहे हैं, सो आप इजीली इस पर क्लिक कर सकते हैं. लाइक इफ़ आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, what will happen, as you can see there मेरे पास यहाँ पर कुछ फॉर्म्स अपीयर हो रहे हैं और मैं यहाँ से अपना क्वेश्चन इजीली चूज़ कर सकती हूँ. मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए मुझे इसने क्वेश्चन यहाँ पर शो करवा दिए. ठीक है, सो आप यहाँ से अपना क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं और इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं. अब ये देखिए ये आपके पास यहाँ पर टॉप पर जो क्वेश्चन है आपका अपीयर हो गया है. सो इस तरह से आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन ऐड करवा सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो फॉर्म है उस पर किसी भी किस्म का कोई टाइटल, आप कोई डेफिनेशन देना चाहें या अपने टॉपिक का टाइटल लिखना चाहें, उसकी डिस्क्रिप्शन है वो टाइप कर सकते हैं ईजिली. इसके अलावा कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं और एट द एंड आप कोई सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं. लाइक अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसके 2 सेक्शंस हो गए. एक सेक्शन ये फर्स्ट पर है, इसका आप नेम चेंज कर दिया मैंने LMS, और इसका भी मैं नेम चेंज कर सकती हूँ, किसी भी और टॉपिक पर मैं इसका नेम रख सकती हूँ. सो इस तरह से हम जो सेक्शन है उसको ईजीली ऐड कर सकते हैं. ओके अब आपने अब हम देखेंगे कि हम इसमें जो टाइम लिमिट है वो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. लाइक मेरा जो फॉर्म है वो कुछ टाइम के लिए मुझे नज़र आए मेरी वेबसाइट पर या मेरे किसी भी पेज पर. एक यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रीव्यू. यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पेज को देख सकते हैं. आपका पेज किस तरह से नज़र आएगा. स्टूडेंट नेम लिखना आपका मैंडेटरी या रिक्वायर्ड का मतलब है, ये जो स्टाइक नज़र आ रहा है इसका मतलब है रिक्वायर्ड, कि स्टूडेंट नेम लिखना आपका कंपलसरी है, मस्ट है. और ये आपके पास जो मेन पेज है. ओके अब हम देख लेते हैं हम इसमें टाइम या जो टाइमर है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपने क्लिक क्या करना है, आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन पर मोर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऐड जोन. सो आपने क्लिक कर देना है ऐड जोन और ये आपको एक न्यू एप्लीकेशन के साथ लिंक कर देगा. ओके अब यहाँ पर आपने जितनी भी गूगल से रिलेटेड एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर आपको अपीयर हो रही हैं. आपने यहाँ पर टाइप करना है फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर. जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास ये नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होगा फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर. इस पर क्लिक कर दें और ये एप्लीकेशन आपके पास अपीयर होगी. आपने इस पर क्लिक करना है और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है. आपने क्लिक कर देना है इंस्टॉल पर और इसे कंटिन्यू करना है. और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये आपकी जीमेल की आईडी के साथ आपको लिंक करेगी. आपने अपनी आईडी चूज़ कर लेनी है और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपने कर देना है अलाउ. उसके बाद आपने सिंपली इसको कर देना है डन. इंस्टॉल हो चुकी है. अब आप इसे कर दें क्लोज. अब ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक ऑप्शन अपीयर हो रही है ऐड जोन. इसका मतलब है कि अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर तो आपने क्लिक कर देना है सेटअप पर. सेटअप पर क्लिक करने के बाद ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन के साथ, जो गूगल फॉर्म्स हैं उसके साथ लिंक हो जाएगी. अब आपने यहाँ से टाइम सेट कर देना है अपने. अब आपने क्या करना है, इस पर
टाइम सेट करना है, अपने नीचे की तरफ स्क्रॉल व्हील को मूव करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास टाइम कंट्रोल। तो यहाँ से आप शो करवा सकते हैं ऑलवेज कि जब भी आपकी इस टेस्ट को या किसी भी और टेस्ट को आप डिस्प्ले करवाएं तो हर दफ़ा आपका जो फॉर्म है वो 30 मिनट्स के लिए डिस्प्ले हो, चाहे आप वो आपने वो 12 बजे शो करवाया या 10 बजे करवाया, जितने बजे भी, वो सिर्फ 30 मिनट के लिए डिस्प्ले होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो लिंक है वो डिसअपियर हो जाएगा। ओके। और इसके अलावा एक ऑप्शन है स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का मतलब है कि आप यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डेट चूज़ कर सकते हैं, लाइक किस डेट को चूज़ होगा, शो होगा आपका ये फॉर्म, ठीक है, और किस टाइम पर, ये आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। और एंड डेट क्या है उसकी टाइम, और इसके अलावा उसकी डेट, ये दोनों आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और ऑप्शन है अलर्ट बिफोर, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहती हूँ कि इस जो टेस्ट है उसका टाइम है मेरे पास 30 मिनट, लेकिन मैं कह रही हूँ स्टूडेंट को वो 5 मिनट पहले अवेयर कर दें कि आपका ये जो फॉर्म है उसका टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आप कंप्लीट कर लें इस फॉर्म को। सो उसके लिए हम क्लिक कर देंगे, मैंने टाइप कर दी यहाँ पर 5। सो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है अलाउ, अलाउ का मतलब है कि स्टूडेंट को आप ये परमिशन देते हो कि आप अपने फॉर्म को 1 या 2 टाइम, जितनी टाइम मर्जी उसको दोबारा से ओपन कर सकें। लाइक अगर मैं 1 टाइम इसको क्लोज कर दूँगी, स्टूडेंट के पास दोबारा से ऑप्शन होगी कि वो उस फॉर्म को क्लोज करके, टाइप करके क्लोज कर दे और दोबारा से ओपन कर ले। लाइक वो पॉज लेगा अपने फॉर्म के दौरान, लाइक अगर उसके सिस्टम में लाइट चली जाती है या जो भी इशू होगा तो उसमें ये उसको पॉज की ऑप्शन होगी। सो इस वक्त मैं सिंपली इसको कर रही हूँ 15 मिनट कर देती हूँ, बल्कि फॉर 10 मिनट। ओके। और मैं ये टाइम सेट कर देती हूँ बिफोर 3 मिनट। और आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, इसको आपने कर देना है क्लिक ऑन दिस पब्लिश फॉर्म। जैसे ही आप पब्लिश फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक लिंक जनरेट कर देगा। ये आपके पास आ गया लिंक। आपने क्या करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है और आप जहाँ भी इसको पेस्ट करेंगे, लाइक मैं अगर पेस्ट करती हूँ गूगल क्लासरूम में, या मैं अगर इसको व्हाट्सएप में भी पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ न्यू टैब में और मैं देखती हूँ मेरा फॉर्म किस तरह से अपीयर हो रहा है। सो एज यू कैन सी, ओके, सो ये मेरे पास जो मेरा फॉर्म है, ठीक है, टोटल 10 मिनट्स का टाइम है और मैं क्लिक कर देती हूँ स्टार्ट पर। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल टाइम 10 मिनट्स है और जो टाइम लेफ्ट है वो भी यहाँ पर मेरे पास काउंटिंग में स्टार्ट हो गया। सो इस तरह से आप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या जो स्टूडेंट का नेम लिखना है वो मैं कंपल्सरी कर देती हूँ, मैं टाइप कर देती हूँ फातिमा। ओके, इसके अलावा अब आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, लाइक अगर मैं इस फॉर्म को सोल्व करूँ, मैंने इस पर टिक किया, और यूज़र क्या कर सकता है अपनी सिलेक्शन को क्लियर भी कर सकता है कि अगर वो कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाह रहा है तो वो यूज़र के पास ऑप्शन होगी। ओके, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ कीबोर्ड। सेलेक्ट द प्लेसेस वेयर वी कैन यूज़ कंप्यूटर, सो आई विल चूज़, ये आपके पास चेक बॉक्स है तो इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है विच इज़ यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, अगेन कीबोर्ड, ठीक है। और जैसे ही आपने क्या किया है, नेक्स्ट किया, और आपने क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे स्टूडेंट क्या करेगा, अपना स्कोर देख सकेगा। लाइक अगर मैं व्यू स्कोर पर क्लिक करती हूँ तो आपके पास ये देखें टोटल पॉइंट्स मेरे पास अपीयर हो रहे हैं 3 आउट ऑफ 3, और जो मेरे कंप्लीट आंसर्स हैं वो ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्पॉन्सेज में रिज़ल्ट शो हो रहा है कि एक स्टूडेंट ने अटैम्प्ट कर लिया। सो ये उसकी समरी है, ठीक है। ये स्टूडेंट का नेम है फातिमा जिसने अटैम्प्ट किया। अब ये जो अगर उसने क्वेश्चन नंबर 1 था तो उसने करेक्ट आंसर कीबोर्ड है, ठीक है, उसने उसको चूज़ किया है। नेक्स्ट आंसर मेरे पास कौन सा है, और अगर किसी ऑप्शन चेक बॉक्सेस में किसी को चूज़ नहीं करती तो वो भी यहाँ पर आपको वो बार में शो कर देगा ग्राफ में। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास क्वेश्चंस, कि मेरे पास क्वेश्चंस कौन कौन से थे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअली यहाँ पर आपको टीचर्स को यहाँ पर हर स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पर अपीयर होगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट की चाह रही हैं वर्कशीट वगैरह इसको
PDF फाइल में कन्वर्ट करने के लाइक अगर आपके पास पूरी क्लास ने फॉर्म अटैम्प्ट कर लिया तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक तो इसका इंडिविजुअली प्रिंट भी निकलवा सकती हैं, इसके अलावा यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट स्प्रेडशीट। सो आपने क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक कर दिया और यहाँ से क्लिक कर देना है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। अगर आप इसको किसी पहले से बड़ी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के साथ लिंक करना चाह रहे हैं तो आपने क्लिक कर देना है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और क्लिक कर दिया क्रिएट। सो अब मेरे पास जो है एक्सेल में एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से ये जो है कस्टमाइज थीम इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। So I hope this form is clear to all these teachers, and if you have any question then you can ask me in